Good morning, all of you. Welcome back to your computer class. As in the previous video, we have seen the question answers of chapter Charts in Excel. And I told you that in the next video, we will see a new chapter, which is a very interesting chapter, HTML, that is Hypertext Markup Language. So coming to the textbook, as you can see, Introduction to HTML. Okay. In this chapter, we will be seeing the introduction, the HTML part, what are the HTML editors, web browser which is used for HTML to display the web page, and steps for creating a web page, viewing HTML code in a browser, how you can view HTML code in the browser. These all things we are going to discuss. So first of all, let's talk about the introduction. Today in this world of computers, you can download any information or document containing text, sound, graphic or video. Okay. Through the internet with the help of web browser. So what is web browser? Okay. So underline this one also. Wait. Web browser is a software that enables a computer to display any type of documents or information इंटरनेट. ओके. वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इनेबल्स अ कंप्यूटर को बताता है कि डिस्प्ले करे किसी भी टाइप ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन को जो कि इंटरनेट पे प्रेजेंट है. डू यू नो हाउ दीज डॉक्यूमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट? These web documents are written in a special language. तो वो लैंग्वेज कौन सी है आपकी? In this chapter we are going to discuss about a language which is popularly known as HTML, that is Hypertext Markup Language. अब HTML पढ़ रहे हैं तो Hypertext Markup Language है क्या? तो Hypertext Markup Language एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए इंटरनेट पे. ओके. और जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट कंटेंट एंड स्पेशल कोड्स जो होते हैं उसमें, उन्हें हम कहते हैं टैग्स. ओके. टैग्स आर द स्पेशल टेक्स्ट कंटेंट एंड कोड्स विच हेल्प अस टू डिज़ाइन अ वेब पेज और टू डिस्प्ले द वेब पेज ऑन आवर इंटरनेट. दैट टेल वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट. इट ऑल्सो प्रोवाइड द मीन्स टू लिंक द पेजेस ऑन द इंटरनेट. हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करा सकते हैं. ओके. ताकि दोनों पेज हमारे आपस में जुड़े रहे. HTML डॉक्यूमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एक्सटेंशन. .html और .htm बोथ यू कैन राइट. आप .htm भी लिख सकते हो फाइल को सेव करते वक्त, और .html अगर आप फाइल सेव कर रहे हैं और .html या .html नहीं लगा रहे हैं सॉरी, तो दैट फाइल इज टेकन एज टू अ टेक्स्ट रिच फाइल. वो नोटपैड की फाइल रह जाएगी आपकी, क्योंकि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है HTML के लिए. तो पहली चीज़ तो ये है, तो .html और .htm लगाना ज़रूरी है. HTML is an initial that stands for Hypertext Markup Language. H. Okay. So first is your H, that is hyper, is the opposite of linear. All the computer programming languages are written in a linear fashion, but HTML does not follow this fashion. Okay. So it is hyper. Text. Text deals with the English alphabetic letters and words. Okay. English alphabetic letters and words. Now next come markup. Since it is a page layout language, so first we write the text and then mark up what we have written. Okay. So for the layout, first we write our text, the codes, and then we see mark up the written text. Language, it is not a typical programming language, it is a very simple programming language. It is just a plain layout and a hyperlink specification language. Means if you practice 2 or 3 times, you can easily learn this language. You can display HTML documents on any type of computer, such as Macintosh, okay, IBM compatible computers. You do not have to create a separate HTML documents for different types of computer.
These documents transfer quickly over the web. Okay. That doesn't means कि आप एक कंप्यूटर पे बनाएं, कल जाके दूसरे कंप्यूटर पे बनाएंगे, फिर तीसरे पे. एक डॉक्यूमेंट्स को आप जो भी कंपैटिबल रिसोर्स है आप उस पर ले जाके यूज़ कर सकते हैं. ओके. Now update your knowledge. Tim Berners-Lee was the main leading the development of the World Wide Web. The defining of HTML hypertext markup language used to create web pages. वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL. ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे. फुल फॉर्म ऑफ URLs. HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे FTP होता है, उसी तरह हमारे वेब ब्राउज़र्स के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बनाए गए हैं वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए. रूल्स एंड रेगुलेशन. इन्फॉर्मेशन गिवन टू अ टैग टू गिव एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर. पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं हम टैग के अंदर, ये चीज़ ऐसे रहेगी, इस तरह से शो होगी, ये सारे पैरामीटर्स हैं. साइज़ की 20 होगी, ये सारी चीज़ें. I hope this you have understood that hypertext markup language. Hyper means the opposite of linear. Text deals with the alphabetic letters. Markup for the page layout, and language is a special specification language for the hyperlink. Now we are going to talk about the features of HTML. Okay. HTML is not a case sensitive language. ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है. अब बात करते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है. केस सेंसिटिव की बात करेंगे तो जैसे हमने HTML लिखा, ऐसे थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं. हमने अपने कोड में लिखा HTML, सभी कैपिटल है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है. लेकिन जब हम डेटा लिख रहे हैं, डेटा लिखने के बाद लास्ट में हमने क्या किया कि हमने छोटे से बंद कर दिया इस तरह से. तो HTML इसको इग्नोर कर देता है कि ठीक है, यहाँ कैपिटल था, यहाँ स्मॉल हो गया, कोई बात नहीं, वो इसको रीड कर लेता है. दैट्स व्हाई इट इज़ टोल्ड एज नॉट अ केस सेंसिटिव. अगर ये केस सेंसिटिव होता तो यहाँ भी आपको कैपिटल से ही एंड करना होता. अगर कैपिटल से स्टार्ट किया आपने तो कैपिटल से ही एंड करना होगा. ठीक है. दिस मीन्स दैट HTML कमांड्स कैन आइदर बी रिटन इन लोअर केस और अपर केस. दोनों ही केस में आप लिख सकते हैं, लोअर भी और अपर भी. ओके. नेक्स्ट. Spaces and tabs can be used anywhere in the document because it doesn't affect the appearance of the document. आप स्पेस और टैब्स का यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपके अपीयरेंस पे डॉक्यूमेंट के. HTML को जो सेव करना है डॉक्यूमेंट को, वो .htm और .html फाइल एक्सटेंशन से ही आराम से करना है. HTML डॉक्यूमेंट इज़ रिटन इन टेक्स्ट एडिटर्स. अब टेक्स्ट एडिटर क्या है? जहाँ पे हम इसके कोड लिखते हैं. दे आर एडिटर्स लाइक नोटपैड इज़ देयर, गेडिट इज़ देयर, वर्ड प्रोसेसर इज़ देयर, WordPad, MS Word and Writer. HTML5, the new version of HTML, has its own writer, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कोड. अगर नहीं है तो आपके सिस्टम में नोटपैड होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, वर्डपैड होगा, वहाँ भी डेटा लिख सकते हैं और उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं .html या .html के नाम के साथ. लाइक आपने लिखा rahul.html, volcano.html, indiagate.html, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं. तो आपके पास बहुत सारे एडिटर्स मौजूद हैं विच यू कैन यूज़ फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज. यू कैन राइट टेक्स्ट टैग्स देयर. नाउ अंडरस्टैंडिंग HTML एलिमेंट्स. दिस वन वी आर गोइंग टू टॉक HTML एलिमेंट्स. सी. HTML consists of text with a special instruction known as tags. The special instructions text or codes are known as tags. Each tag giving a specific instruction is enclosed in an angle bracket that I told you right now itself that we will use angular bracket. Okay. HTML tags tell a browser how to organize and present text, images and other contents. HTML टैग्स जो होते हैं वो ब्राउज़र को ये बताते हैं कि जो भी प्रेजेंट टेक्स्ट है या इमेज है या अदर कंटेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज़ करना है. ये हमारे HTML टैग्स बताते हैं.
Now if you see, most tags have an opening tag and a closing tag. तो बहुत सारे टैग्स में क्या होता है, ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, तो उन्हें हम कंटेनर टैग्स कहते हैं. जैसे कि ये है आपका ओपनिंग, इसी के साथ एक बैकस्लैश के साथ HTML. ये क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है. तो दोनों में क्या है, इसको कंटेनर टैग कहा जाता है, जो कि दोनों तरफ अफेक्ट करते हैं. लेकिन क्लोजिंग टैग हैज़ फॉरवर्ड स्लैश, ओके, एंड सम टैग्स हैव एन ओपनिंग टैग ओनली, दे आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स. तो जिनके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होंगे उसे हम कहेंगे कंटेनर टैग. जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होगा वो हमारा कहलाएगा एम्प्टी टैग. लाइक टाइटल, इट हैज़ ए ओपनिंग टैग. मिनहाज वेब पेज ये टेक्स्ट है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है क्योंकि देखिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ टाइटल लिखा हुआ है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द कंटेनर टैग. HTML टैग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, एक कंटेनर टैग्स और एक एम्प्टी टैग्स. दो तरह से कैटेगराइज किया गया है. कंटेनर टैग, tags that have both starting as well as ending are known as container tag. And a tag which has opened using angular bracket and closed using angular bracket with forward slash. For example, HTML opening and HTML closing. But if we talk about the empty tag, so simple answer, the tag that have only starting and there is no need to close them, known as empty tag, like BR tag, breaking the line. BR tag is used for breaking the line, okay, not for starting the paragraph. For starting the paragraph we will use P tag. So here BR is an example of breaking the line. Now we are going to talk about the attributes. Okay, HTML attributes. Some tags have attributes that offer option for the tag, and most attributes work by setting a numeric or descriptive value. बहुत सारे वैसे भी हैं जो न्यूमेरिक और डिस्क्रिप्टिव वैल्यू सेट करते हैं. तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि हमेशा वो ओपनिंग HTML टैग और उनके साथ क्या होता है, इट इज़ अ गुड फॉर्म टू इनक्लोज एट्रीब्यूट्स इन अ कोटेशन मार्क. ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं उन्हें. लाइक द फॉन्ट टैग हैज़ अ कलर एट्रीब्यूट, सो इट विल बी रिटन इन अ डबल इनवर्टेड कॉमा, like see font color, and this is the color code. Color code, okay, so you will get different color codes also, or directly you can write the name of the color also, like red, blue, whatever color you want you can write it over here. Okay, entitles are the special characters, just like copyright symbol or a fraction that you had added to a web. By using special codes, so entitles represent corrects not readily available on the keyboard. All entities are preceded by an ampersand, okay, ampersand sign followed by a semicolon. For example, the code and copy adds copyright symbol to your web page. Okay, so whenever you use this, it creates a copyright symbol. Okay, the ampersand you will put before the name with semicolon. So they are entitles, means they are special characters, copyright symbols or a fraction. Now avoiding syntax error. How we can avoid syntax errors? You should always check
योर कोड टू अवॉइड HTML एरर्स। हमेशा अपने कोड को चेक करिए, आपने जो लिखा है वो सही है, एक बार चेक करके देख लीजिए कि वो चीज़ें सही आ रही कि नहीं। मोस्ट HTML एडिटर्स हैव फीचर्स दैट हाईलाइट रॉन्ग सेंटेंस। बहुत सारे फीचर्स ये होते हैं जो गलत सेंटेंस को तुरंत क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो मेक श्योर टैग्स हैव ब्रैकेट्स। आपको ध्यान रखना है जितने भी आप टैग्स लिख रहे हैं ब्रैकेट होना चाहिए, वो भी एंगुलर। अगर एंगुलर ब्रैकेट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो रिस्पॉन्स नहीं देगा आपको HTML। जैसे कि एक्सेल में इक्वल्स टू ज़रूरी होता है, बिना इक्वल्स टू के आपका फॉर्मूला रेडी नहीं करेगा। क्लोजिंग टैग होना चाहिए। इंक्लूड स्लैश। एट्रीब्यूट वैल्यूज आर सराउंडेड बाई कोटेशन मार्क। जो भी एट्रीब्यूट वैल्यू होगी कोटेशन मार्क के अंदर होगी, हमको इसका भी ध्यान देना है। मल्टीपल HTML टैग्स शुड बी प्रॉपरली नेस्टेड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास HTML टैग है तो प्रॉपरली नेस्टेड होना चाहिए। नेस्टेड का मतलब होता है एक के बाद एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सेटअप होना चाहिए। मीन्स क्लोजिंग टैग शुड बी इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द ओपनिंग टैग। अब आप देख लीजिए P अलाइन सेंटर मीन्स पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट हो रहा है विनाश वेब पेज का, और उसके लिए क्या है B फॉर बोल्ड एंड P फॉर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को बंद किया गया और B फॉर बोल्ड को भी बंद किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रॉपरली आपका मीनिंगफुल है। ऑलवेज कंसीडर यूजिंग द न्यू लाइन्स टू टाइप कोड। हमेशा ही ध्यान दीजिए कि नई लाइन्स का प्रयोग करेंगे कोड करने के लिए, यूज़ करेंगे। लाइक इन फर्स्ट लाइन यू हैव रिटन द कोड, देन दिस एंटर एंड देन गो टू द सेकेंड लाइन, instead of running everything together in the long line. So it will make your HTML readable. Doing so will not affect your web page. It is displayed because web browsers ignore extra white spaces. तो आपके पास अगर स्पेस लगा के आप लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं वाइट स्पेसेस को। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है HTML। आई होप क्लियर टू यू ऑल। नाउ रेंडरिंग HTML। When a browser displays a web page, जब ब्राउज़र एक वेब पेज डिस्प्ले करता है, इट रिट्रीव्स द HTML फाइल फॉर दैट पेज फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से वो रिट्रीव करता है, उस फाइल को निकालता है, रिसीव करता है, और रीड्स HTML टैग्स टू डिटरमाइन हाउ द कंटेंट शुड बी फॉर्मेटेड एंड डिस्प्ले। वो रीड करता है कैसे कंटेंट को डिस्प्ले किया जाएगा और साथ ही साथ फॉर्मेट किया जाएगा पेज को। तो HTML टैग जो है वो टेल कर बताता है ब्राउज़र को कि व्हाट इमेजेस, ऑडियो एंड अदर कंटेंट नीड टू बी डाउनलोडेड। कौन सी चीज़ें ज़रूरतमंद है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज वेब ब्राउजर्स इग्नोर एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस। HTML टैग्स टेल द ब्राउज़र व्हाट इमेजेस, वीडियो एंड अदर कंटेंट नीड टू बी डाउनलोडेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द पेज। वो बताता है HTML ब्राउज़र को क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, और उस तरह से वो हमें पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो चीज़ देता है और हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट है HTML वर्जन। ओके, HTML हैज़ गॉन थ्रू सेवरल वर्जन्स। बहुत सारे वर्जन्स हैं इसके, बट ईच ऑफ विच एक्सपैंड्स इट्स compatibilities or capabilities. Although most browsers still support HTML version 3.2 and 2.0, सभी लोग क्या 3.0 और 2.0 चला रहे होते हैं, जबकि आप नया देखोगे तो 4.01 इंक्लूड्स रूल फॉर यूजिंग मोर देन 90 HTML टैग्स। उसके अंदर रूल है कि 90 से ज़्यादा HTML टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, जबकि पुराने वाले में नहीं कर सकते हैं। So it is an improvement of previous version by adding better support. एक इम्प्रूवमेंट है, पुराने वर्जन को चेंज करके नया वर्जन लाया गया। एडिंग बेटर सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया, स्क्रिप्टिंग एंड स्टाइल। मल्टीमीडिया स्क्रिप्टिंग स्टाइल के लिए भी नया हो गया। द ब्राउजर वॉट इमेजेस, वीडियोज एंड ऑडियो एंड अदर कंटेंट्स नीड टू बी डाउनलोडेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द गैप्स। सोल्जरों का ये कहना था कि आप जो है वीडियो वगैरह वापस अच्छे से आप लोग बनाएं। ओके, इंटीग्रेटेड इनटू द पेज। जो भी ब्राउजर्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज है, कंटेंट है, डाउनलोड करें तो उसको इंटीग्रेट विद पेज में। ओके, अब बात है कि नए नए वर्जन आ रहे हैं, 90 HTML टैग्स हो गए, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ प्रीवियस वर्जन्स बाय एडिंग बेटर सपोर्ट टू मल्टीमीडिया। ओके,
So this version offers new feature for creating web page. So as you can see, the HTML has gone through several versions which expands its capabilities. Although most browsers still support version 3.2, 2.0, 4.0 includes rule for using the 90 HTML tags. 90 से ज़्यादा HTML tags का यूज़ करें, and it is an improvement of previous version by adding better support for multimedia. अगर देखा जाए तो पिछले से बेहतर है ये, इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि फॉर मल्टीमीडिया स्क्रिप्टिंग स्टाइल शीट्स के लिए बेहतर है. दिस वर्जन ऑफर्स न्यू फीचर फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. ये वर्जन अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे नए फीचर्स लेकर आया है वेब पेजेस बनाने के लिए. द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ HTML इज़ HTML5, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि HTML5 का एडिटर भी आ चुका है और HTML5 एक न्यू वर्जन है. इस वर्जन में क्या है कि रूल्स है फॉर यूजिंग मोर देन 100 डिफरेंट HTML टैग्स. 100 से ज़्यादा HTML टैग्स का आप यूज़ कर सकते हैं और ये इम्प्रूवमेंट है प्रीवियस वर्जन से, जिसमें कि नए टैग्स यूज़ किए हैं फॉर डिफाइनिंग कॉमन टाइप्स ऑफ पेज कंटेंट. बेटर सपोर्ट है ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए. ड्राइंग कैपेबिलिटी विद द न्यू कैनवास टैग से. कैनवास टैग से हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन जैसे कि लाइक पेंटागन, हेप्टागन, सेप्टागन, ट्रायंगल्स, ये सब हम ड्रॉ कर सकते हैं. So HTML5 succeeds HTML 4.01 which was released in 1999. ओके, तो 1999 में जो रिलीज़ हुआ था उसमें HTML5 क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया. अब बात करते हैं XHTML की. तो अगर हम XHTML की बात करते हैं तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज है कोडिंग वेब पेजेस की, क्योंकि XHTML इज़ ऑल्सो टैग बेस्ड एंड यूज़ मैनी टैग्स यूज इन द HTML. जो HTML में यूज़ होते हैं उसी तरह के टैग्स इसमें भी यूज़ होते हैं बहुत सारे. XHTML ऑल टैग्स मस्ट बी क्लोज्ड, टैग्स नेम एंड एट्रीब्यूट मस्ट बी कोडेड इन लोअर केस एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज़ फॉर टैग्स मस्ट बी सराउंडेड विद द कोटेशन मार्क. इसमें रूल है कि जितने भी टैग्स ओपन हैं उनको क्लोज्ड होने चाहिए. टैग नेम्स और एट्रीब्यूट जो हैं वो लोअर केस में ही होना चाहिए. एट्रीब्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो सराउंडेड होनी चाहिए कोटेशन मार्क के अंदर. तो मोस्ट मॉडर्न ब्राउज़र कैन रीड बोथ HTML एंड XHTML. जो मॉडर्न ब्राउज़र है आपके एज है, क्रोम है, वो HTML और XHTML दोनों को पढ़ सकते हैं, दोनों को रीड कर सकते हैं कोड को. अब हम बात करते हैं HTML एडिटर की. तो HTML डॉक्यूमेंट्स आर प्लेन टेक्स्ट एंड सो वी कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम टू कोड HTML एंड क्रिएट वेब पेजेस. अब जैसे अगर हम टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो टेक्स्ट एडिटर है क्या, तो टेक्स्ट एडिटर इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउ यूज़र टू एंटर, चेंज, सेव, प्रिंट टेक्स्ट सच एज HTML टेक्स्ट. एडिटर डू नॉट हैव एडवांस फीचर्स बट दे अलाउ यू टू डेवलप HTML डॉक्यूमेंट्स ईजिली. टेक्स्ट एडिटर एक प्रोग्राम है जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि आप एंटर करो टेक्स्ट, चेंज करो, सेव करो, प्रिंट करो, जैसे कि HTML टेक्स्ट है. तो उसमें कुछ एडवांस फीचर्स नहीं होते लेकिन वो अलाउ करते हैं डेवलप करना HTML डॉक्यूमेंट्स को ईजिली. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो उसके पास नोटपैड है. एप्पल्स की बात करें तो उनके पास टेक्स्ट एडिट है. यूबंटू की बात की जाए तो उनके पास गेट इट है. ठीक है, गेट इट फॉर यूबंटू, टेक्स्ट एडिट फॉर मैक, नोटपैड फॉर विंडोज़. सो दीज 3 आर वेल नोन सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स. ओके, ये बहुत ही देखा जाए तो वेल नोन टेक्स्ट एडिटर जो कि हम जानते भी हैं, इनके बारे में यूज़ भी करते हैं. ठीक है, अब हम HTML एडिटर की बात करते हैं. HTML एडिटर की बात करें तो एक्लिप्स, ब्लूफिश, ये डेडिकेटेड प्रोग्राम है HTML कोड लिखने के लिए और मैनेजिंग वेब पेजेस. वेब पेज को मैनेज करने के लिए और HTML कोड लिखने के लिए HTML के खुद के, ये तो भाई विंडोज़ के थे, एप्पल्स के थे, यूबंटू के थे, लेकिन HTML के खुद के एडिटर हैं एक्लिप्स एंड ब्लूफिश. These programs provide basic text editing function as well as more advanced features. कुछ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग फंक्शन के साथ साथ एडवांस फीचर्स देते हैं, जैसे कि कलर कोडिंग फॉर वेरियस HTML टैग्स. ये कलर कोड प्रोवाइड करते हैं हमें HTML टैग्स के लिए. मेन्यूज, इंसर्ट HTML टैग्स एंड स्पेलिंग चेकर्स. These programs save your time for writing HTML code and offer a graphical information for building web pages as well as text-based environment. ये आपका समय बचाते हैं. जो आप HTML कोड में लिखने में टैग हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं कि मेरा ग्राफिकल इन्वायरमेंट ये होगा या टेक्स्ट बेस्ड इन्वायरमेंट होगा, कैसा होगा, उन चीज़ों से. उसके बाद आता है YCYG एडिटर. ओके, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट. इसका फुल फॉर्म है वॉट यू सी
as what you get. Okay, you can also create a web page using Vycwitch editor such as Adobe Dreamweaver, Amaya, Adobe's Go Live, Coffee Cup, HTML एडिटर है. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट एडिटर की बात करें, तो प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है हमें, जो कि अलाउ करता है डेवलपर को प्रीव्यू करने के लिए अपने वेब पेज को ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट के समय ही हम इसको प्रीव्यू देख सकते हैं. तो WSIWYG इज़ एन एक्रोनिम फॉर वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट. इट इज़ द एक्रोनिम. An editor creates the HTML code for you while you add elements to the web page, which means that you do not have to enter HTML tags directly. आपको HTML tags directly enter नहीं करना है, वो अपने आप आपके एलिमेंट्स को क्रिएट कर देता है. जैसे आप एलिमेंट्स क्रिएट करते हो, पेज अपना बनाना शुरू कर देता है. अब हम बात करते हैं अदर एप्लीकेशंस की. ठीक है, तो अदर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है. वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड एडवांस एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फीचर. वर्ड प्रोसेसर में क्या है, एडवांस एडिटिंग फीचर्स दिए हुए हैं उसमें. बट एनी फॉर्मेटिंग यू कैन अप्लाई टू द टेक्स्ट विल नॉट अपीयर व्हेन यू व्यू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड ऑन द वेब. लेकिन जो भी हम चेंजेस करेंगे यहाँ पे वो वेब पर नहीं दिखेगा. जबकि अगर हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं और वर्ड प्रोसेसर, यू मस्ट फर्स्ट टाइप द टेक्स्ट फॉर द वेब पेज एंड देन ऐड HTML टैग्स टू स्पेसिफाई हाउ यू वांट द टेक्स्ट अपीयर. पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले टेक्स्ट लिखोगे फॉर वेब पेज, उसके बाद आप उसमें HTML टैग्स ऐड करेंगे कि आपको कैसा वो अपीयर हो वेब पेज पर. तो वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू सी हाउ द वेब पेज अपीयर्स. वेब ब्राउज़र यूज़ किया जाता है. हम यहाँ कोई चेंज करते हैं, टैग में चेंजेस करते हैं, तो हम जाकर देखते हैं फिर इसको कि कैसा वो दिख रहा है वेब पेज. तो मैनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑल्सो प्रोवाइड फीचर्स दैट इनेबल यू टू डेवलप वेब पेज ईजिली. दैट आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, PowerPoint. For example, save as web page feature that converts a web page document into HTML file automatically, adding HTML documents or tags. Adobe Acrobat also has export feature that creates HTML file. इसके पास भी एक export feature है जो हम create करके फाइल को बाहर भेज सकते हैं. Import मतलब अंदर, export मतलब बाहर, upload है. Each of these application also allows you to add hyperlinks. ये सभी एप्लीकेशन हमें मदद करते हैं हाइपर लिंक्स करने में, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बनाने में, ऑप्शन बटन बनाने में, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑफ द वेब पेज. सो दीज एडवांस्ड वेब फीचर्स मेक इट सिंपल टू सेव एनी डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डेटाबेस. जितना एडवांस फीचर हमारे पास आता जाएगा, जितना मॉडिफिकेशन होता जाएगा, उतनी चीज़ें सिंपल होती जाएंगी. अगर एडवांस फीचर ना हो तो हम पुरानी चीज़ों से करते रहें, क्या ज़रूरत है नई चीज़ें. लेकिन नई चीज़ें क्या है कि हमें हेल्पफुल बना रही है, यूज़र फ्रेंडली हो रहा है, चीज़ें हमारे हैंड में है, ईजिली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. ओके, प्रेजेंटेशन टू डिस्प्ले एज अ वेब पेज. अपने प्रेजेंटेशन को हम एज अ डिस्प्ले करा सकते हैं एज अ वेब पेज. ईजिली हम कोई चीज़ें उसमें डेट, टाइम, कैनवस से ड्राइंग कुछ भी बना सकते हैं और एक अच्छा वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. तो ये थी टेक्स्ट एडिटर की कहानी. अब है वेब ब्राउज़र फॉर HTML. अभी तक तो हम टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहे थे कि अलग अलग टेक्स्ट एडिटर है, उसमें हम टेक्स्ट को लिखते हैं, यूज़ करते हैं, चेंजेस लाते हैं, फिर वेब ब्राउज़र में देखते हैं. तो अब वेब ब्राउज़र की कहानी क्या है. तो अगर आप देखेंगे तो अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज द रिजल्टिंग वेब पेजेस. वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डिस्प्ले करता है रिजल्टिंग वेब पेज को. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले HTML डॉक्यूमेंट्स. हम वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए. एंड यू सेव लोकली ऑन योर कंप्यूटर. हम ईजिली अपने कंप्यूटर पे उसे क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं. व्हेन कोडिंग योर HTML यू कैन यूज़ अ वेब ब्राउज़र टू टेस्ट योर वर्क. जब हम HTML का कोड करते हैं तो मैंने वैसे बताया कि हम क्या करेंगे, बगल में एक ब्राउज़र ओपन किए रहते हैं. जैसे हम कुछ चेंजेस करते हैं, बार बार जाके चेक करते हैं कि वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, वहाँ पे आ रहा है या नहीं. तो you can use a web browser to test your work and popular browsers are nowadays Microsoft Internet Explorer, जो कि Internet Explorer नहीं, Microsoft Edge हो गया है, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome and Opera. ये कुछ ब्राउज़र्स हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा. Most computer operating system come with a browser already installed.
बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे ब्राउज़र्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। जैसे कि विंडोज़ की बात करते हैं, जो कि हमारा आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट एज है। एप्पल मैक कंप्यूटर में आप देखेंगे सफारी, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा आर सम वेब ब्राउजर्स दैट हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स। तो आज के दौर में देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। ठीक है। ब्राउजर प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फीचर इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटी टू लोकेट वेब पेजेस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बिटवीन वेब पेजेस, आगे जा सकते हैं पीछे आ सकते हैं हम पेजेस में, बुकमार्क कर सकते हैं, URL है वहाँ पे, यू नीड टू टाइप URL इन द ब्राउजर एड्रेस लोकेशन बार। हाइपरलिंक एक लिंक है, इसको इज अ लिंक एज एन एलिमेंट यूज टू कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर। एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने के लिए हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम उस लिंक को क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को एक बार और रीड करिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस आर मेड फॉर क्वेश्चनिंग एंड डाउट्स। ओके, so steps for creating a web page is your next topic which we will discuss in the next class. Till then, stay safe, take care, have a nice day.